Hello, students. Good morning. Here we'll talk about vocabulary. This is a second layer, second step, we can say. Earlier we discussed denotation, connotation, and we concluded that denotation means literal meaning or direct meaning, right? Or first meaning, we can say. And connotation is contextual meaning. Uh, we can say that a word has two meanings. One is literal meaning, another one is contextual meaning, right? So the same word can be used in a different way in different context. Its contextual meaning means if you have good idea about denotation of a word, then you can use it the same word in different context, right? So it enhances your vocabulary, right? It is very helpful to express in a different way. It creates uh, interest in your expression, right? So that was the video on denotation and connotation. Now that's the second level where we are going to discuss different drills. Means extensive vocabulary drills are synonyms, antonyms, homonyms, and jargon are highly effective. Means suppose you have come across with a new word, so you should think about synonyms of the same word, antonyms, right? And sometime homonyms, homophones, jargons, right? Means in all uh, different uh, aspects of the word, right? We have to discuss. And once you have developed this habit, then definitely you will have lots of words, and then there is very easy to express in a different way, and it will always be very interesting, right? So let us start this session with these four drills, right? So first is that is okay. Before proceeding, let me tell you that why we have discussed denotation and connotation and now these words. Because you can take one example. For example, a word confusion, right? Confusion. So if you always use the same word, I am confused because of confusion, this this project could not complete, whatever, right? So सेम वर्ड क्रिएट्स मोनोटनी. अगर आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो तो वो एक बोरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है. इसीलिए हमें उसका सिनोनिम्स का और उसका अगर एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप उस वर्ड का ऑपोजिट सिचुएशन बताना चाहते हो तो एंटोनिम्स भी आपको तभी आप बहुत कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाओगे जब आपको उसका सिनोनिम्स या उसका डिनोटेशन कनोटेशन बहुत अच्छे से पता होगा. तो फॉर एग्ज तो इसीलिए कन्फ्यूजन फॉर एग्जाम्पल है ना. तो इसका दूसरा मीनिंग है बेफल, है ना. फिर कन्फाउंड. कन्फाउंड यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ मैं, बस स्पेलिंग इस कन्फाउंड है ना. फिर एक और होता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कन्फाउंड इस कन्फाउंड फ्लामॉक्स, right? These are the different meanings of synonyms of confusion. But please keep in mind that these are synonyms of confusion, but not just like confusion.
हर वर्ड में एक हेयर लाइक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी हमें, द मोर यू यूज वोकेबलरी, द बेटर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सिनोनिम, है ना, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि सिनोनिम्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग, राइट, दैट्स द सेम मीनिंग और सिमिलर मीनिंग बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट वर्ड्स, है ना। एक ही मीनिंग है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है, इसका मतलब है कि अगर वो डिफरेंट वर्ड है तो कुछ तो डिफरेंस उसमें होगा, है ना। तो सिनोनिम्स आप स्कूल डेज से पढ़ रहे हो। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और अ वेरी सिमिलर मीनिंग, राइट। तो सेम और सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड, तो उसी के जैसा वर्ड। तो यहाँ पर अगर आप इसकी ड्रिलिंग करते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, ड्रिलिंग विद सिनोनिम्स एक्सपांड्स योर एक्सप्रेसिव रेंज। नेचुरली आपको उस वर्ड के अगर बहुत सारे सिनोनिम्स मालूम है तो आपकी एक्सप्रेसिव रेंज बढ़ जाती है, allowing you to choose the most precise word for any context and avoid repetition। तो एक तो आप सेम वर्ड को रिपीट करते हो, तो मैंने बोला एक बोरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है या एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, उससे बचते हो आप। और दूसरा, द मोस्ट प्रिसाइज वर्ड, तो आप उन आपके पास चॉइस होती है कि कन्फाउंड यूज़ करना है, कि फ्लामॉक्स यूज़ करना है, बैफल यूज़ करना है, अनस्टडी माइंड यूज़ करना है, कि कन्फ्यूजन यूज़ करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो दैट्स अ एडवांटेज ऑफ सिनोनिम्स, है ना। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे कि हैप्पी के सिनोनिम्स क्या है, तो जॉयफुल और इलेटेड। तो अगर आप यहाँ पर एक सेंटेंस है कि शी फेल्ट जॉयफुल और इलेटेड आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज़, तो आप हम जनरली जॉयफुल यूज़ करते हैं, लेकिन इलेटेड भी उसका एक वर्ड है। तो आपका एक्सप्रेशन अलग होगा। आपने कहा शी फेल्ट इलेटेड आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज़, है ना। फिर दूसरा है बिग, तो बिग के लिए है इनॉर्मस, मैसिव, है ना। तो a massive or enormous crowd gathered for the concert, right? So a massive or an enormous crowd, or a huge crowd, big crowd, right? This way. Then start, commence or initiate. So then they will commence or initiate the project next week. So that's the meeting commence with a silent prayer. Anything. This way you can use different words for start, right. Last is rapid or swift is are the synonyms of fast. So a swift or rapid current pull the boat downstream, है ना। कहते we have to we have to move in this fast rapid world, or in this rapid world, right, this is a rapid process, जल्दी बहुत फास्ट प्रोसेस है, इस तरह से आप सिनोनिम्स यूज़ करते हो। तो आपके पास जितने सारे वर्ड्स हैं, और यू आर लकी बिकॉज यू कैन रेफर ऑनलाइन डिक्शनरी, यू कैन यूज़ योर फोन दिस वे। यही फ़ोन आपका सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए कि जैसे ही आपको नया वर्ड कभी आपने सुना या पढ़ा, तो उसको इमीडिएटली उसके सिनोनिम्स देख लो कि और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सिनोनिम, जो आपका रिपीटिशन को रोकती है। और दूसरा, आप बहुत प्रिसाइज कि नहीं, कन्फर्म नहीं, यहाँ बेफल ज़्यादा यूज़ होगा। अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्यूजन, कि नहीं कहाँ पर बैफल्ड यूज़ होगा, कहाँ कन्फाउंड यूज़ होगा, और कहाँ फ्लामॉक्स यूज़ होगा। हर जगह, दो दीज आर द synonyms of confusion, but again these are not alike, like a ditto for a word। एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो वो बारीकियाँ, वो नॉइंसेस अगर आप एक बार समझ गए, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो देन यू विल हैव क्लियर आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी सिनोनिमस वर्ड, है ना, तभी उसका आइडिया होगा। तो प्रैक्टिस करिएगा।
अब नंबर 2 है एंटोनिम्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट मीनिंग, है ना। तो ऑपोजिट मीनिंग्स मैंने बोला कि अगर आप किसी वर्ड का सिनोनिम तभी यूज़ करोगे जब उसका ऑपोजिट अच्छे से पता होगा, और ऑपोजिट तभी यूज़ कर पाओगे जब उसका सिनोनिम अच्छे से पता होगा। तो हम जैसे ही हमने कन्फाउंड देखा, मान लो, तो हमने कहा कि अनस्टडी। तो अनस्टडी, ये मैं एक एग्जाम्पल देने, कहते हैं ना अनस्टडी माइंड, अनस्टडी माइंड। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो बहुत फिक्स है, वो बहुत स्टडी माइंड है, राइट। ये इसका ऑपोजिट वर्ड है, राइट। तो इसी तरह से कन्फाउंड और क्लियर, नहीं नहीं मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने अपने टॉपिक पे, है ना। तो ये इसको कहते हैं ऑपोजिट, कन्फाउंड एंड क्लियर, है ना। तो इसी तरह से antonyms क्या है, are the words that have opposite meaning, right? तो opposite meaning is antonyms. Practicing antonyms helps solidify your understanding of words definition by considering its polar opposite, है ना। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। अगर आपको एंटोनिम्स पता है किसी वर्ड का, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे उसके ऑपोजिट सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जांपल हॉट, तो आपने कहा नहीं नहीं ये कॉफ़ी हॉट नहीं है, तो ये कॉफ़ी क्या है, कोल्ड है। तो आप उसको कहोगे कि द कॉफ़ी वॉज फ्रीजिंग नॉट हॉट एज रिक्वेस्टेड। आपने हॉट हॉट कॉफ़ी मंगवाई, आपने कहा ये ठंडी हो गई। तो आपने ये जो दोनों ऑपोजिट वर्ड है उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, द कॉफ़ी वॉज फ्रीजिंग, है ना। देन दे सपोज दैट्स नॉट हॉट एज रिक्वेस्टेड, जो मैं मुझे तो हॉट चाहिए थी, आपने बिल्कुल ठंडी कॉफ़ी ला दी, ऐसा। फिर हाई, हाई का ऑपोजिट इज लो या डीप। द बर्ड फ्लू लो अक्रॉस द हाई माउंटेन, है ना। तो यहाँ पे उड़ रहे थे, कहाँ पे उड़ रहा था, लो एंड हाई। तो दिस वे यू कैन यूज ऑपोजिट वर्ड। देन एक्सक्लूड, इंक्लूड का ऑपोजिट एक्सक्लूड और ओमिट, जनरली हम एक्सक्लूड यूज करते हैं, तो प्लीज एक्सक्लूड और ओमिट दैट चैप्टर फ्रॉम द फाइनल रिपोर्ट। तो कहते नहीं नहीं वो रिपोर्ट के चैप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, या उसको निकाल दो। तो हम कहते हैं प्लीज़ एक्सक्लूड द चैप्टर फ्रॉम द रिपोर्ट, और प्लीज़ प्लीज़ एक्सक्लूड दिस टॉपिक फ्रॉम द डिस्कशन, है ना, ओमिट दिस टॉपिक, जो भी है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। फिर है सक्सेस का फेलियर और डिफीट, है ना। तो डिस्पाइट द इनिशियल डिफीट और फेलियर दे अचीव्ड अल्टीमेट सक्सेस। तो आपने ये दोनों तो सिनोनिम्स वर्ड्स है और ये एंटोनिम है, तो इस तरह से यूज़ कर पाओगे आप जब आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि इसका पॉजिटिव क्या है। तो हर वर्ड का सिनोनिम्स पता होगा तभी आप एंटोनिम्स यूज़ कर पाओगे, और एंटोनिम्स पता होगा तो सिनोनिम्स, वाइस वर्सा होता है। अब ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, होमोनिम्स। अब आप इसको कैसे याद करो, होमो मीन्स अलाइक, है ना, एंड निम्स मीन्स नेम। मतलब जो द वर्ड, राइट, साउंड अलाइक एंड डिफरेंट मीनिंग, तो ठीक है, साउंड अलाइक एंड स्पेलिंग ऑल्सो लाइक, सो दैट्स अ निम इज नेम, है ना। तो आप इसको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, तो आप इसको ऐसे याद करो, एस मतलब साउंड एंड स्पेलिंग, मतलब ये जो दोनों है ये एक जैसी होती है। क्या, साउंड और स्पेलिंग, उसको कहते हैं होमोनिम्स। कैसे, homonyms are words that sound the same, right, and or spell the same, right, और स्पेल द सेम, मतलब उसकी स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम है। बस ये दो चीज़ें याद रखना है, एस प्लस एस इज इक्वल टू एस, साउंड प्लस स्पेलिंग इज सेम, ऐसे याद करो। इसको कहते हैं ट्रिपल एस को होमोनिम्स, राइट, ऐसे याद करो आप इसको। तो
दिस कैटेगरी इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग स्पेलिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपके पास ये फेयर है और ये फेयर है। पता नहीं आप कुछ लिख रहे हो या सुन रहे हो, है ना, आपको बोलना है या आप समझना चाहते हो, तो दैन देर इज ऑलवेज, बिकॉज साउंड इज सेम, फेयर एंड फेयर, बट दिस फेयर इज रेंट, राइट, एंड दिस फेयर इज जस्टिस। और भी मीनिंग होते हैं। अभी मैं, दिस फेयर इज वाइट स्किन, दिस फेयर इज रेंट, है ना। तो ये होमोनिम्स नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स, राइट। दिस इज होमोफोन्स। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो दोनों वर्ड्स हैं, दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है ना। तो अच्छा, अगर मैं ये होमोफोन्स है ये, और होमोनिम्स की मैं अगर बात करूँ, तो होमोनिम्स क्या है? तो होमोनिम्स है बार्क, राइट, बैंक। होमोनिम्स क्या है? देखो, बैंक, बैंक, सॉरी, सॉरी, होमोनिम्स इज अ बैंक। बैंक्स हैज टू मीनिंग। एक फाइनेंशियल बिल्डिंग जहाँ बैंकिंग होता है, ट्रांजैक्शन होता है, मनी, बैंक जो होता है। दूसरा मीनिंग होता है बैंक का रिवर साइड, रिवर साइड। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स। क्यों? नाम भी एक ही है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना। तो उसको ऐसे याद करो। फिर होमोफोन्स, है ना। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। Homonyms means what? Homonyms means words that sound same and spelling same. तो ये है, लेकिन इसका साउंड और स्पेलिंग सेम है, तो उसको आप ऐसे भी याद कर, इसका नेमोनिक आप ऐसे बना सकते हो। ये सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, इस तरह से आप ऐसे याद करो ना। तो यहाँ पर दिस कैटेगरी इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग स्पेलिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आप लिखोगे तो समझ में आएगा आपको कि नहीं भाई, फेयर का एक FAIR फेयर है जो जिसका मीनिंग जस्टिस है, और एक FARE फेयर मतलब रेंट होता है, ऐसे, है ना। होमोनिम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं होमोनिम्स। बट फॉर ड्रिलिंग इट इज़ ऑफन हेल्पफुल टू ग्रुप दैम। अगर आप होमोनिम्स की बात करते हो तो आपको होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो होमोफोन्स क्या है? साउंड द सेम, डिफरेंट स्पेलिंग, है ना, डिफरेंट मीनिंग। तो होमोफोन्स का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे होमोनिम्स में हमने देखा था एस सेम है ना। ये है होमोनिम्स, होमोनिम्स, लेकिन होमोनिम्स, लेकिन अगर हम होमोफोन्स की बात करें, होमोफोन्स, तो होमोफोन्स में क्या है? ये साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो यहाँ आप उसको किस तरह से लर्न कर सकते हो? आप उसको यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो कि ये SD, है ना, मतलब स्पेलिंग तो सेम है, सॉरी, साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, राइट। तो इसीलिए इसका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा होमो। तो दिस विल बी होमोफोन, है ना। ऐसे याद कर सकते हो। मैं फिर से बताऊंगी अभी लास्ट में आपको। तो द वर्ड विच हैज़ द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग। कौन कौन से वर्ड? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टू, टू एंड टू, है ना। तो ये साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, दिस टू, दिस टू, दिस टू, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स। नाउ कम टू होमोग्राफ्स।
As name, graph means writing, right? Graphing is writing. So spell the same, different sound, डिफरेंट मीनिंग, है ना? अब यहाँ पे ग्राफ मतलब कि आपका मेजर कंसर्न इज स्पेलिंग सेम है, होमोग्राफ्स। ग्राफ्स मतलब स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है और साउंड भी डिफरेंट है। स्पेलिंग एक ही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेड एंड लीड, राइट? तो लेड इज स्पेलिंग सेम है, राइट? पर लीड साउंड भी अलग है, तो इसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड अलग है और डिफरेंट मीनिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग, डिफरेंट मीनिंग। इसको कहते हैं होमोग्राफ्स। जैसे कि रीड, राइट, और रेड, इसका पास्ट टेंस रेड। तो दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड अलग है ना? तो जैसे कि एक और एग्जांपल बताती हूँ। दैट्स अ रेज्यूमे। रेज्यूमे ये डॉक्यूमेंट है। जब आप रेज्यूमे बोलते हो तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। और रिज्यूम बोलते हो आप, रिज्यूम ए का साउंड नहीं होता, तो दिस इज वर्बल फॉर्म एंड दैट्स अ टू रीजॉइन, राइट? तो इसका स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, राइट, spell the same, sound, spell the same, sound the same, different meaning, है ना? तो अब आप इसको ज़्यादा मत डिटेल में जाओ, आप इसको देखो क्योंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। सी जो वर्ड है ये, है ना? तो आई कैन सी द वास्ट सी फ्रॉम द क्लिफ। तो देखो उसमें कितना, अगर आप साउंड सेम है, आई कैन सी द वास्ट सी फ्रॉम द क्लिफ, मैं पहाड़ी में से सी को पूरा काफ़ी दूर तक देख सकता हूँ, इसका ये मतलब है ना? फिर राइट और राइट और राइट, तीन राइट है, कौन सा? राइट, राइट, राइट डूडलिंग और राइट रिचुअल, है ना? ये रिचुअल है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लीज राइट द करेक्ट आंसर एंड फॉलो द वेडिंग राइट, है ना? तो ये रिचुअल्स, वेडिंग राइट, इस तरह से, राइट? फिर बेल, बेल, दो बेल होते हैं, तो इसमें द फार्मर हैड टू बेल वाटर from the flooded room after moving a bale of hay, है ना? तो ये बेल का डिफरेंट मीनिंग है। सिमिलरली इफेक्ट और इफेक्ट बहुत कॉमन है, बहुत बार ये वाला वर्ड आता है, इफेक्ट और इफेक्ट, है ना? तो एक वर्बल फॉर्म है, एक नाउन फॉर्म है। द रेन विल अफेक्ट द क्रॉप एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट विल बी एविडेंट नेक्स्ट सीजन, है ना? तो इफेक्ट प्रभावित करना, इफेक्ट भी प्रभाव होता है लेकिन एक नाउन फॉर्म है, एक वर्बल फॉर्म है, तो उसको ऐसे यूज करते हैं, है ना? अब लास्ट पार्ट है इसका, जार्गन। जार्गन स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। जार्गन जो होता है वो एक एक खास स्पेशल वोकेबलरी फॉर स्पेशल डोमेन और स्पेशल टॉपिक्स, ऐसे समझो उसको। तो जैसे कि मान लो बैंक का कोई पर्सन है, बैंक एम्प्लॉय है, तो वो बैंकिंग टर्म्स को ज़्यादा यूज़ करेगा, नॉर्मल बात कहने के लिए भी उसको उसके एग्जाम्पल से समझाएगा। मान लो मैनेजर है तो वो मैनेजर अपने कॉमन वोकेबलरी जो उस पर्टिकुलर डोमेन, उस जॉब के लिए है, वो उसको यूज़ करेगा। साइंस है, अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंस टर्म यूज़ करेगा। अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो वो एस्ट्रोनॉट टर्म्स ज़्यादा यूज़ कर, ये इसको जार्गन कहते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं वो जो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बने होते हैं, these words are called jargon. Jargon refers to the specialized vocabulary or terminology used by a particular group,
प्रोफेशन और इंडस्ट्री, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, प्रोफेशन के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल वोकैबलरी बनती है, उसको कहते हैं जार्गन। इसीलिए कहते हैं कि भाई जार्गन शुड नॉट बी यूज फॉर मासेस। अगर आप मास के लिए जार्गन यूज़ करोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशन के लिए के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को समझ में आएगा, लेकिन सबको तो नहीं समझ में आएगा। तो ये जार्गन होता है। अच्छा, लर्निंग जार्गन इज क्रूशियल फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो जैसे कोर्ट लैंग्वेज होती है, तो अगर आप जार्गन्स अच्छे, आपको कोर्ट कोर्ट टर्मिनोलॉजी पता होगी, तभी आप ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे, समझ पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। बैंकर्स को बैंकिंग टर्म समझना पड़ता है। तो इस तरह से जार्गन्स जो होते हैं वो हमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में बहुत हेल्प करते हैं। अब है इसका एग्जाम्पल फिनेंस के लिए। जैसे लेवरेज, तो जो फिनेंस इंडस्ट्री या फिन इस फील्ड के लिए एक वर्ड है लेवरेज, है ना। तो लेवरेज का मतलब होता है द यूज ऑफ बोरोड कैपिटल to increase the potential return of an investment. तो the firm decided to use leverage to maximize their return of the new acquisition. तो ये लेवरेज है। अब फाइनेंस का पर्सन अगर लेवरेज को प्रॉपर नहीं समझेगा तो ही और शी कैन नॉट बी एबल टू मेक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, है ना। तो ऐसा होता है। अब मान लो टेक्नोलॉजी में बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मतलब द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ, ऑफन यूज टू मीन कैपेसिटी। तो बैंडविड्थ हम इसमें पढ़ते हैं ना, अपना अगर आप मोबाइल, है ना, तो अलग अलग वो होती कैपेसिटी होती है। अगर आप कोई डेटा लेते हो, आप लेते हो जियो लेते हो, है ना, तो बैंडविड्थ देख के लेते हैं हम। तो वी आर रनिंग लो ऑन सर्वर बैंडविड्थ ड्यूरिंग पीक यूसेज आवर्स। जैसे खूब ज़्यादा 12 बजे सवेरे का, है ना, तो वो बहुत सारे लोग उस टाइम एक्टिव रहते हैं, काम करते, तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वी आर रनिंग लो ऑन सर्वर बैंडविड्थ, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो ये टर्म टेक्निकल पर्सन को समझना पड़ेगा। लॉ वाले को हबीस कॉपस, अब मुझे भी नहीं पता इसका मतलब, लेकिन अगर वो जो लॉ जो प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट, उसको दे ही नीड टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। So let us discuss what's the meaning of this phrase habeas corpus. A writ requiring a person understand under arrest to be brought before a judge और इनटू कोर्ट, है ना। तो एक रिट लगाई जाती है रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर, जज के सामने लाने के पहले। तो द लॉयर फाइल्ड अ रिट ऑफ हबीस कॉर्पस टू चैलेंज द डेफिनेशन ऑफ डिटेंशन ऑफ देयर क्लाइंट, है ना। तो क्लाइंट को डिटेन करने के लिए जो भी है, इस तरह का एक लॉयर ने एक रिट फाइल की है हबीस कॉर्पस टू चैलेंज द डिटेंशन ऑफ देयर क्लाइंट, तो उसके क्लाइंट को डिटेन करने के। तो इस तरह के टर्म जार्गन्स जो है वो फिक्स है अलग 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 एरिया में, डोमेन में, है ना। जैसे मार्केटिंग में एसईओ, तो एसईओ क्या है, तो द एसईओ एक्रोनिम है, एक्रोनिम ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको ये भी जार्गन में आता है, ये एक्रोनिम है, एक्रोनिम, है ना। एक्रोनिम मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, है ना। तो इसमें एसईओ, ठीक है। तो इसका द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ पर्टिकुलर website by ensuring that the site appears high on the list of results returned by सर्च इंजन, है ना। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब है कि एक प्रोसेस जिसमें आप कितनी बार विजिट करते हो,
तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आर कंटेंट इज एसेंशियल फॉर बेटर SEO रैंकिंग। आप अच्छा मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगी तो मेरे व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, उसको मैं रफली आपको इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दैट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कितनी बार विजिट करते हो, कितना अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उससे, ये मार्केटिंग के लोगों के लिए ज़रूरी। ओवरऑल जार्गन जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वर्ड्स है जो एक पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन में या फिर उसमें यूज़ होती है, एक ग्रुप में या प्रोफेशन में या इंडस्ट्री के लिए बनाई जाती है। उस उन वर्ड्स को हम जार्गन कहते हैं, है ना। हाउ टू ड्रिल इफेक्टिवली, हम करें कैसे इन सब की प्रैक्टिस। तो फॉर एन इफेक्टिव ड्रिल यू कैन यूज दीज कैटेगरीज टू बिल्ड वर्ड फैमिलीज, है ना। तो आप ऐसे करके एक वर्ड फैमिली बना सकते हो, वर्ड ट्री बना सकते हो। यहाँ आप सिनोनिम्स लिख लो, यहाँ अपोजिट लिख लो, या जार्गन्स लिख लो। कुछ भी तरह से प्रैक्टिस पर करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगा, है ना। सिलेक्ट अ कोर वर्ड, आपने एक वर्ड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एडेप्ट, तो मीनिंग हाईली स्किल्ड, है ना। यू आर राइट। तो एडेप्ट और एडॉप्ट, फिर इसके सिनोनिम्स हमने एडेप्ट के, देखो अब इसमें भी एडेप्ट भी होता है, एडॉप्ट भी होता है ना। तो ये एडप्ट जो है ये स्किल है, ये एडप्ट का मतलब स्किल होता है, और ये अडॉप्ट मतलब टू एक्सेप्ट, है ना। ये एक्सेप्ट होता है, बेबी एडॉप्शन। तो खैर वो तो अलग बात है। यहाँ देखते हैं कि वो एडप्ट का क्या मीनिंग बता रहे हैं। वो बता रहे हैं एडप्ट के सिनोनिम्स क्या है, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, एक्सपर्ट, है ना। एंटोनिम्स क्या है, इनएडप्ट, इनएप्ट, है ना, जो कुछ काम नहीं कर पाता, इनएप्ट, क्लमजी और अनस्किल्ड, राइट। ये इसके एंटोनिम्स हैं। आपको जितने एंटोनिम्स पता होंगे उतना अच्छा आप सिनोनिम्स भी उतने अच्छे से याद कर पाओगे, तो वो ज़रूरी होता है। फिर प्रैक्टिस होमोनिम्स, इसी की प्रैक्टिस, वाइल एडेप्ट डज नॉट हैव अ कॉमन वन, you would practice a different pair like principal, right, head of the school, principal, or principal, है ना। that's a fundamental truth। तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, इन दोनों स्पेलिंग में इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज स्पेलिंग PAL जो इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, और PLE जो हमारे रूल्स या ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ है। ये प्रिंसिपल है कि भाई वो अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, है ना। तो कौन सा प्रिंसिपल, ये वाला PLE, PRIN, है ना। सो दैट्स अ PRINCIPLE। प्रिंसिपल मतलब आपकी ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ, और प्रिंसिपल मतलब हेड या चीफ, है ना। तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। अब आइडेंटिफाई रिलेटेड जार्गन, इससे रिलेटेड जार्गन क्या है। तो इफ़ एडेप्ट, वो एक ही एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि इफ़ एडेप्ट वॉज यूज इन अ स्पेसिफिक फील्ड, सो एन एडेप्ट कूलर सॉरी एडेप्ट कोडर क्विकली फिक्स द बग, जार्गन फॉर एरर, है ना। तो इस तरह से जार्गन हम यूज़ करते हैं। तो ये जार्गन गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको जार्गन एडेप्ट कहाँ पर यूज़ होगा, किस लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बाय प्रैक्टिसाइजिंग ऑल 4 टाइप्स, मतलब 4 टाइप्स में हमने देखा क्या क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, होमोफोन्स और जार्गन्स, होमोनिम्स और जार्गन। अगर और भी इस तरह से हमने डिटेल, लास्ट टाइम हमने देखा कि डिनोटेशन, कनोटेशन, प्रैक्टिस करोगे आप तो दैट्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट, nuances and specialized usage will be developed। तो आपके कंटेक्स्ट, आपको अलग अलग ऑथर्स क्या करते हैं, ऑथर्स को बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर वोकैब का आइडिया होता है, तो उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं।
नॉइंसेस बिल्कुल बारीकियाँ जो छोटी छोटी सा डिफरेंस है वो अगर आपको पता हो जाएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली वर्ड्स को यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट वर्ड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि आपके पास जितना भंडार रहेगा शब्दों का आप उतने आसानी से बहुत अच्छा कुछ भी लिख पाएंगे, राइटअप लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्पेशलाइज यूसेज, ठीक है। फिर अब ये छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन है कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है यहाँ से। होमोफोन्स, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, होमोफोन्स क्या है। तो दैट्स अ साउंड द सेम, क्योंकि सुनाई, फोन मतलब सेम साउंड, होमोफोन्स, बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ऑफ कोर्स सुनाई एक जैसा दे रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। कैसे कि स्पेलिंग भी अलग है, टू और टू अभी हमने ऊपर भी देखा, पर होमोनिम्स में स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, मीनिंग अलग है। कैसे? आर अ ब्रॉडर कैटेगरी, राइट, इंक्लूड्स वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड सेम, राइट, साउंड सेम, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, है ना। बेट, अब इसका स्पेलिंग भी सेम है, आप इसको होमोफोन्स और होमोनिम्स को ऐसे याद रखना। होमो कॉमन है ना, होमो कॉमन है, फोन, और यहाँ पे निम, है ना। तो निम में क्या है, आपको एक ही वर्ड मिलेगा, इसमें आपको दो, और इसमें आपको एक ही वर्ड मिलेगा। बस ऐसे याद रखो कि होमोफोन्स और होमोनिम्स, ठीक है। तो होमोनिम्स में आपको एक वर्ड के मीनिंग्स मिलेंगे, इसमें आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, इसमें आपको अलग अलग दो वर्ड्स होंगे, है ना। अब इसमें जैसे टू और बेट, टू, फिर टू, फिर टू, ये तीन वर्ड ये किसके एग्जाम्पल, क्योंकि सुनाई एक जैसा दे रहा है लेकिन स्पेलिंग सबकी अलग है। ये TO2 है, ये TWO2 है, और ये TO है ना। तो ये क्या हो गया, एक जैसा सुनाई दे रहा है, तो ये होमोफोन्स है। लेकिन अगर आपने कहा बैंक, तो ये एक ही वर्ड है लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग है ना। तो ये होमोनिम है, बस ऐसे याद करो आप इसको। तो ये बैट है ना, तो मान लो बैट है, तो बैट मतलब एनिमल भी होता है, और बैट मतलब स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट जिससे हम खेलते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखो आप। इन अ स्ट्रक्चर होमोनिम्स रेफर स्पेसिफिकली वर्ड्स, ये आप इतना मत डिटेल में जाओ, नहीं तो आपको और कन्फ्यूजन होगा। ये साउंड है, बस आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये कई बार बच्चे पूछते हैं क्लास में कि डिफरेंस बता दीजिए, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप इसको डिफरेंस को ऐसे समझो कि ये फीचर्स है ना, कि साउंड, स्पेलिंग, मीनिंग, एग्जाम्पल। तो साउंड क्या है, होमोफोन्स का नेचुरली सेम साउंड है, और होमोनिम्स का भी सेम साउंड है, लेकिन स्पेलिंग में होमोफोन्स की स्पेलिंग डिफरेंट है और होमोनिम्स की स्पेलिंग सेम है। मीनिंग की बात करते हैं हम, तो ऑफ कोर्स मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि स्पेलिंग भी डिफरेंट है, और इसका भी, होमोनिम्स का भी डिफरेंट होते हैं, मीनिंग अलग अलग होता है। हमने इसमें देखा सी सी, है ना। तो ये जो सी और सी है, ये क्या है, और राइट और राइट, तो ये किसके एग्जाम्पल, क्योंकि सुनाई एक जैसा देता है, ये होमोफोन्स है। और होमोनिम्स क्या है, तो होमोनिम्स है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, होमोनिम्स क्या है, तो ये क्या है, सॉ, है ना, टू कट द पास्ट टेंस, सी, लाए लाए, राइट। तो सॉ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉ, तो टू कट, सॉ, एंड दैट्स अ द पास्ट टेंस ऑफ सी। तो दो तरह के सॉ है, एक कट और दूसरा पास्ट टेंस ऑफ सी। फिर लाए और लाए, तो इस तरह से दो वर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम होमोनिम्स। तो ये है, मैं इसको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें अब आपको मैं वाइट बोर्ड यूज़ करके समझाऊंगी इनका मीनिंग। कुल मिलाकर फाइनली वी कैन से दैट if you do these practices, like these words, if you play with these words, so definitely that's the
Play, if you're playing with a word means uh, you are thinking about synonyms, antonyms, jargon, right, homophones, homonyms. तो फिर आप उस वर्ड में बहुत जितना, the more you do practice with practice with these type of words and uh, drills, so the better you will have idea about the word. बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा आपको. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, है ना. ये सारे ड्रिल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगी. और करोगे तो 100% आपका बहुत कॉन्फिडेंस रेज होगा और बहुत अच्छा लिख पाओगे. एंड गुड राइटिंग मीन्स, इट इज सेड दैट if you are apt, if you are confident in writing part स्पोकन पार्ट, तो आपका 50% तो आप किसी भी इंटरव्यू और एग्जाम्पल एग्जाम के लिए यू आर प्रिपेयर्ड, राइट. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.